Okay, let's start our session. First of all, Assalamu alaikum everyone. My name is Muntaha Azhar and I have been allocated to Pakistan Administrative Services in CSS 2020 while securing 24th position in all over Pakistan. So it is all the blessing of Allah, I would say, and qualifying CSS and getting allocated in your desired group is all dependent upon the upon your fate, I would say. And definitely hard work is always there, smart work is always there, the prayers of your parents, the guidance of your mentors, and the persistent commitment, motivation, the prime features. If you have all those, if you get all those combined in yourself, then definitely you can get your desired group and your aspiration to become a civil servant of Pakistan. So firstly I would start with my basic introduction, where I belong to, what is my basic education, and how did I plan to start my CSS preparation, what was actually the prime motivation behind it. So I belong to Sheikhupura basically, and it is just near Lahore. I have my matric from there, from the Punjab Public School. After that, I carried on my education and did my intermediate and bachelor's from University of Home Economics with specialization in art and design back in 2015. After my graduation, I worked as a fashion designer in Nishat Linen, and for some period I worked there. After a few months, I left the job, and I planned to find some other job and start my preparation for CSS, because it was the actually the motive, actually the plan of my father, who wanted to see me as a civil servant. He wanted me to become an assistant commissioner, and he asked me to prepare for CSS because it is the right time, it is the right age to start at 21 or 22, where you have all the three chances available and you have all the resources available. You are not socially bound to other responsibilities. So it is the right time to start for the preparation, and I followed my father's advice and started my preparation. In 2017, I appeared for the first time in CSS. However, unfortunately, I could not qualify one paper, the paper of essay. So I flunked in that, and I had to, it was a kind of demotivating factor for me, and left my preparation for CSS, and I was not planning to do it again. So after taking break and starting my own professional career, I work as a graphic designer and as a freelance researcher. I then setting up my career, I again appeared in 2019. So in my second attempt, it was my preparation of just I would say like 3 to 4 months, because I had a basic idea, a basic knowledge about everything. I was very good in my optionals in my first attempt as well, so I had no issue regarding those preparation stuff and the kind of criteria I would follow, the kind of subjects I would choose, and the kind of presentation I have to prepare for my papers. So I was completely aware. I had background knowledge. I was very much clear vision and plan, like I have to study some, refer some books, some suggested books that I can quote. Then I worked for quoting. I prepared. I actually worked smart there and actually prepared those quotes which I extracted from the books and wrote on a paper, so I could use them in my subjects. These were the basic quotes that are from the recommended books of all optional subjects. So I believe that this is the kind of approach that helps you to get more marks, to get higher marks, because CSS is not just about qualifying the papers, it is about securing as much marks as you can, because this is a competitive exam and you have to secure maximum marks to get your desired group. So मैंने अपनी प्रेपरेशन के अंदर जो है बहुत सी सोर्सेज कंसल्ट किए थे, बहुत सी जो सजेस्टेड बुक्स हैं वो कंसल्ट की थी,
उसके बाद मैंने अपने लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रिपेयर किए, अपने सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन की, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में की हुई थी, एंड आई थिंक्स वर वेरी मच लाइक फ्रेश इन माय माइंड। मुझे सब चीज़ों का पहले से आइडिया था। एंड उसके साथ मैंने अपनी ऐसे की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। और यही मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट में रियलाइज़ किया और उसी को मैंने ओवरकम किया अपनी सेकेंड अटैम्प्ट में। सो दिस इज़ हाउ आई वॉज एबल टू सिक्योर माई सेकेंड अटैम्प्ट। And after securing that, I was not there is no kind of feeling like you can get after appearing in your papers like you are definitely going to qualify that. I had no that kind of feeling. I was even not sure कि मैं ये पास भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और मार्क्स मेरे कितने आएंगे, मैं अपना टॉप का ग्रुप ले पाऊंगी, मैं टॉप पोजीशंस में आ पाऊंगी। आई वॉज नेवर थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत बड़ी अप्रोच है मेरे ख्याल में। आपको उस टाइम पर सब ये पास हो जाए यही बहुत बड़ी बात होती है, और आप उस टाइम पे भी श्योर नहीं होते कि पास होंगे भी कि नहीं होंगे। सो दिस इज़ हाउ जब मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ तो इट वाज लाइक ऑफ मैं आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर हु वाज काइंड ऑफ मोटिवेटिंग मी एट दैट टाइम, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन था। आई वाज लाइक प्रेइंग ऑल द टाइम। जब मुझे पता लगा कोई 12-1 बजे के पास के आज रिटर्न का रिजल्ट आ रहा है, और इट वाज 3rd of November, मेरी सिस्टर जो थी शी वाज लाइक नहीं तुम कर जाओगी, इतना मसला नहीं है। एंड माई फैमिली, दैट वाज एक्चुअली द बेसिक मोटिवेशन एंड द बेसिक सपोर्ट बिहाइंड मी। उन्होंने मुझे साइकोलॉजिकली बहुत सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया कि बस तुम दुआ करो, ये तुम कर लोगी, इस दफ़ा हो जाएगा। क्योंकि मेरी मदर को लगता था शायद मैं पहली दफ़ा में भी कर जाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं कर सकी। तो जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो आई वॉज लाइक प्रेइंग। मैं जाए नमाज पर बैठी हुई थी, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, आधी नमाज़ पढ़ी, और बीच में मैंने अपना रिज़ल्ट देखा। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ लाइक अनमैचेबल फीलिंग। आई नेवर हैड अ फीलिंग लाइक दैट। और तो मैंने अपना जब रिटर्न का रिजल्ट देखा तभी मैं ये सोच रही थी ओह अगर मैं पास हो भी गई हूँ। बहुत ज़्यादा आपको उस टाइम डीमोटिवेटिंग जो होती है फीलिंग्स भी आ रही होती हैं, आप खुश भी होते हैं, आपको ये भी लगता है इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, अब मैं पता नहीं इसमें कहाँ रैंक कर रही हूँ, मैं पता नहीं 360 पर आऊँगी, 70 पर आऊँगी। मुझे सारा टाइम ये डर था, और ऐसा भी लगता रहता है कि मैं अपनी अम्मा को कहती थी नहीं मुझे लगता है कि मेरे पूरे 600 नंबर होने हैं, इससे ऊपर एक नंबर भी नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो इसके अंदर भी जो है वो नंबर्स जो होंगे वो मैक्सिमम 610 620 तक होंगे। हाउएवर आई सिक्योर्ड 675 मार्क्स इन रिटन एंड 200 मार्क्स इन इंटरव्यू, एंड दैट my interview marks actually helped me to get the top group in civil service. So ये सब किस्मत की बात है। मैंने बहुत प्रेपरेशन की, मैंने सोचा कि मेरा टारगेट ही यही था कि पता नहीं अब रिटर्न किस तरह का हुआ, जैसा भी हुआ सो हो गया। अब मेरे पास रिजल्ट आ गया है। अगली अटैम्प्ट की तैयारी नहीं करनी अभी, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करना और इंटरव्यू की बेस्ट करनी है, ताकि चलो एलोकेशन हो जाए, किसी भी ग्रुप में हो जाए, बस एक दफ़ा एलोकेशन हो जाए। फिर मैं अगर पैस के लिए मुझे दोबारा करनी पड़ी तो फिर मैं वो अपनी 3rd अटैम्प्ट में कर लूँगी, लेकिन इस टाइम मैं अपनी बेस्ट देती हूँ। किसी तरह 200 के पास अगर मेरे मार्क्स आ गए तो मैं 600 भी लेकर बैठी हुई अगर रिटर्न में, तो मैं एटलीस्ट अपनी पोजीशन को सिक्योर कर पाऊँगी। सो दिस वाज माई टारगेट। और मैं पूरे पीरियड में जो इंटरव्यू का फेज़ था मैं कई दफ़ा डीमोटिवेट हुई, कई दफ़ा परेशान हुई, लेकिन मैंने अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट जारी रखी। मैंने अराउंड लाइक 3 to 4 मेंटर्स को कंसल्ट किया, जहाँ पर मैं जिनसे मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, और मैं कंटिन्यूस इस फेज़ में रही कि मुझे लगता था कि मैं हर टाइम ही इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं हर दूसरे तीसरे दिन किसी के पास इंटरव्यू देने चली जाती थी, और मैं इंटरव्यू जो भी मेरी प्रिपरेशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी होती है, आपको मेंटोर सिर्फ गाइड कर सकती हैं। ये रिटर्न का भी फार्मूला है, और यही फार्मूला जो है वो आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। सो इसके अकॉर्डिंग मैंने किया, और जब मैं अपनी इस फेज़ में रही सारा टाइम पर, मैं हर 2 से 3 दिन बाद, हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर मैं चली जाती थी किसी टीचर के पास। तो दिस इज़ हाउ जब मेरी इंटरव्यू की बारी है, अब बारी मेरा लकीली इंटरव्यू भी सेकंड फेज़ में था, मुझे काफ़ी टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए। मैंने अपने रिटर्न से भी ज़्यादा तैयारी अपने ऑप्शनल में की। अराउंड 6 मेरे पास कोई 5 मंथ्स थे, और 5 मंथ्स दैट वाज अ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ऑफ 5 मंथ्स। मैंने कोई भी टाइम नहीं छोड़ा, मैंने अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ स्किप की, सारी सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड किया, और कम्प्लीटली अपनी इस पे फोकस किया। कोई मैं घर में भी मूवीज़ ड्रामाज सब कुछ मैंने छोड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ अपनी नींद पूरी रखती थी, रिलैक्स रहती थी, और साथ में पढ़ने की कोशिश करती थी।
मैक्सिमम। सो जब मेरा इंटरव्यू और मैं इंटरव्यू से देकर आई तो आई वाज लाइक बाहर कोई लड़की खड़ी थी जब मैं निकली बाहर, एंड आई वाज नॉट अवेयर कि वो कौन है, मैं उसको फेमिलियर नहीं थी। स्टिल हाउ मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन थी कि मैं कुछ इतना करके आ गई हूँ कि पैनल मुतमईन है। उसके आगे मुझे नहीं पता था कि अच्छा हुआ है, ज़्यादा अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, बिकॉज आई गॉट सम रिमार्क्स फ्रॉम अ पैनलिस्ट। लाइक उसने मुझे बोला कि तुमने सब कुछ आंसर कर दिया, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है रह गया आखिरी, इसको भी तुम आंसर कर दो। सो दिस इज़ हाउ मुझे पता लग गया कि मैं इनको आंसर कर रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने सब आंसर किया, मैंने स्किप भी कई क्वेश्चंस किए, लेकिन एट फर्स्ट इंस्टेंस जो क्वेश्चंस थे वो मैं सब आंसर कर रही थी जो मुझसे पहली दफ़ा में पूछे जाते थे। लेकिन अगर उस पर कोई डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है, तो तब मेरे क्वेश्चंस डेफिनेटली स्किप होते थे। सो ये वो सारा फेस। और जब मैं बाहर निकली, जो भी मेरे सामने लड़की है, मैं उससे आई जस्ट हग्ड हर और मैंने उसको बोला चलो शुक्र है ये हो गया, अब ख़त्म हो गया सब, अब सिर्फ रिजल्ट रह गया है। तो वो सेटिस्फेक्शन, वो जब आप अपना पेपर देकर या अपना इंटरव्यू देकर कोई भी चीज़ निकलते हैं, जो आपकी पहली फीलिंग होती है वही एक्चुअली आपकी ट्रू फीलिंग होती है। उसके बाद आप अपने आप को कई जगहों पे कंपोज कर रहे होते हैं। कई जगहों पे मैं बहुत परेशान हुई कि मैंने ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया या इसका आंसर मेरा ठीक नहीं था, मैं इसको इससे बेहतर आंसर कर सकती थी। वो बहुत से आपको फीलिंग्स आती हैं। तो मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि देर इज़ नो सर्टेनिटीज इन CSS, और इवन जो क्वालिफाई करता है टॉप से लेके एंड तक, एलोकेटेड नॉन एलोकेटेड, उन सब में से लाइक 90% को ये भी नहीं पता होता कि वो कहाँ रैंक कर रही हैं, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर गई हैं या कितना बुरा परफॉर्म हुआ है या क्या कमी रह गई है। सो दिस इज़ ऑल आपको स्ट्रगल, दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल, दिस इज़ ऑल अबाउट बीइंग मोटिवेटेड ऑल द टाइम। और उसके अलावा जो है देर इज़ नो लाइक कोई आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं होता जब तक आपकी DMC नहीं आ जाती। दिस इज़ ऑल माई CSS जर्नी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली CSS होता क्या है और इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली, और इसकी जो लीगैलिटी क्राइटेरिया है, आप किस तरह एलिजिबल होते हैं, वो सब क्या है। तो सबसे पहले तो जो CSS है, इट इज़ अ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जाम। इट इज़ अ competitive exam that is held all over Pakistan on a certain date in a certain month। ठीक है, और डेट पहले ही तकरीबन अनाउंस कर दी जाती है। और जो महीना है फरवरी का महीना, यू ऑल पीपल वुड बी फेमिलियर कि इसी महीने में हमेशा एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। एग्ज़ाम्स इज़ अ टफ थिंग, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिनको लाइक अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आई हैव अ सिमिलर पर्सनैलिटी, लाइक मुझे भी यही कुछ इश्यूज़ हैं। तो उनके लिए वो 6 दिन बहुत टफ होते हैं जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको सुबह से शाम जागना होता है, आप रिवीजन भी पूरी नहीं कर पाते, और रात को भी आपको आकर रिवीजन करनी होती है, सोने का टाइम नहीं होता। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग आपको बीच में भी आती है, ओहो कब ये ख़त्म होंगे। उस टाइम आपको इतनी पेपर की परेशानी नहीं हो रही होती जितनी आपको ये हो रही होती है कि बस अब ये ख़त्म हो जाए। तो वो बहुत टफ होती है। उस टाइम पर जो किस्मत है वो इंसान का बहुत साथ देती है। अगर किस्मत साथ दे तो सब अच्छा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कभी भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ ऐसा करंट अफेयर के पेपर के अंदर हुआ। दैट वाज द 4th पेपर एंड द पेपर ऑन सेकेंड डे ऑफ माई एग्ज़ाम्स। तो जो ये पेपर था कोई सेकेंड टाइम का, तो मुझे आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई हाफ ऑफ माई पेपर, तो मुझे वॉमिटिंग अचानक शुरू हो गई, कुछ गर्मी की वजह से और इस तरह थोड़ी टेंशन भी। तो लाइक मैंने कोई 4 to 5 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग की। और मुझे जो इन्विजिलेटर थी, शी वॉज कंसिस्टेंटली आस्किंग मी कि आपको हम फर्स्ट एड दे दें, एंड आई वॉज नॉट लाइक मुझे आप टाइम दे दें, मुझे असल में कोई भी आपकी एड वगैरह नहीं चाहिए, मुझे टाइम दे दें, क्योंकि मुझे मेरा पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। मेरी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से मैं लाइक बार बार अपना पेपर छोड़ के जा रही हूँ। बट शी सेड कि आप सॉरी हम आपको टाइम तो दे नहीं सकते, लेकिन अलाउड नहीं है। बस वो पेपर था और उससे रेलिवेंट परेशानी थी कि अब मेरा वो पेपर तो अच्छा हुआ नहीं है, ज़रूर उससे अगर मैं पास भी हो जाऊंगी, क्योंकि वो जीके का पेपर है, जीके के 3 पेपर्स जो होते हैं उनके मार्क्स कलेक्टिवली आते हैं। तो मुझे था कि चलो पास तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरे बहुत मार्क्स नीचे गिर जाएंगे इसकी वजह से, जो मैं यहाँ पे मेरा पेपर रह गया है। एक्चुअली आखिरी 2 क्वेश्चन तो मुझे अभी भी नहीं आइडिया कि मैं उन क्वेश्चन में क्या करके आई थी। ये मेरा सारा उसका आपको बताने का मकसद है कि प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है इस सारे फेस के अंदर। तो पेपर जो है वो टोटल 12 होते हैं, 6 कंपलसरी होते हैं, 6 ही ऑप्शनल्स होते हैं। कंपलसरी डेफिनेटली हर बच्चे ने पढ़ने हैं,
और जो ऑप्शनल्स पेपर हैं वो अराउंड 8 ग्रुप्स में, 8 to 9 ग्रुप्स में वो डिवाइडेड होते हैं। और जो सारे ग्रुप्स हैं उन सब के अंदर से इट इज़ मैंडेटरी कि आप एक टाइम पर एक ही पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो था मेरा अपना जो ग्रुप था, जो मैंने कॉम्बिनेशन था पेपर्स का, ऑप्शंस का, वो मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को 200 मार्क्स का रखा। उसके अलावा मेरे पास इंडो पाक हिस्ट्री था एज एन ऑप्शनल, जो कि टफ है इन सेंस कि लोग उसको ऑप्ट कम करते हैं और देयर इज़ अ लाइक लो स्कोरिंग ट्रेंड, तो इस वजह से वो थोड़ा रिस्की है। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके साथ भी सेम इशू है कि उसका ट्रेंड जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना स्कोरिंग नहीं है। और उसके अलावा मेरे पास जेंडर स्टडीज़ था, पंजाबी था। दे बोथ आर हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, और इन दोनों ने ही असल में भी मुझे हेल्प आउट किया बिकॉज आई स्कोर्ड 79 इन जेंडर स्टडीज़ एंड 81 इन पंजाबी। सो पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और जेंडर स्टडीज़, आई वुड से मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक मेरे में से ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे। पब्लिक एड वाज लाइक नॉर्मल, आई स्कोर 57 इन पब्लिक एड, तो दिस इज़ हाउ, वो कोई बुरा पेपर नहीं था, मतलब एवरेज ठीक मुनासिब पेपर हो गया। इंडो पाक में मेरा थोड़ा काफ़ी कम स्कोर आया 41, और इंडो पाक इस दफ़ा हिट भी हुआ है। मेरी दफ़ा में ये हर दफ़ा होता है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स हिट हो जाती हैं, और मेरी दफ़ा में सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और उसके अलावा इंडो पाक हिट हुए थे। तो असल में अगर आप लोगों को ये परेशानी होती है कि जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं तो जो कुछ सब्जेक्ट्स हिट हो जाते हैं, तो आप किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, दिस इज़ ऑल लक। आप कुछ हद तक तो इसको अवॉइड कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि अच्छा, इसका ट्रेंड जो है इतने साल से बुरा जा रहा है, तो मैं इसको नहीं रखता या नहीं रखती, तो इसकी बजाय मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट रख लेती हूँ जो कि जिसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और जिसमें एग्जामिनर इतना ज़्यादा जो है लोगों को टफ टाइम नहीं दे रहा। आप ये सब काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्रिमिनोलॉजी पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा स्कोरिंग रहा। कोई भी बंदा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्रिमिनोलॉजी हिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल लक। आपके सब्जेक्ट्स में से कोई ऐसा सब्जेक्ट निकल सकता है। इसके लिए होता है कि आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, अपने हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। मेरी स्ट्रेटजी में मैं आपको खुद जो अपना एक्सपीरियंस कोट करूँगी यहाँ पर, कि मैंने अपने हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया था। मैंने किसी को भी ये नहीं समझा था कि ये मुझे आता है तो मुझे इसको नहीं करना, ना पॉलिटिकल साइंस को, ना इंडो पाक को, ना करंट अफेयर्स को, ना इस्लामियत। मैंने हर एक को ऐसे को इक्वली प्रिपेयर किया। अपने रिटर्न की प्रेपरेशन में मैं किसी एकेडमी नहीं जा रही थी, मैंने अपनी पर्सनल प्रेपरेशन की थी, घर बैठ कर तैयारी की थी। सो मैंने जो ऐसे की प्रैक्टिस है, जिस तरह राइटिंग स्किल्स के बारे में मुझसे यहाँ के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो राइटिंग स्किल्स जो हैं वो जो है लिखने से ही आती हैं। उससे पहले आपके लिए अच्छा है कि आप अच्छी सोर्सेज को पढ़ें, अच्छे बुक्स को पढ़ें, ठीक है। उन बुक पढ़ें, ठीक है। उन बुक्स को पढ़ने से क्या होता है कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश की बुक्स अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ग्रामर की रन एंड मार्टिन की बुक है, इस तरह और भी रिकमेंडेड बुक है। अपनी ग्रामर को असेस करें, कोई उसमें गलती ना हो। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल, ठीक है, कि आपकी ग्रामर ठीक हो। CSS is all about analytical skills, about analysis, about your organization, about the symmetry of your paper, ठीक है, कि आप हर चीज़ को इक्वल टाइम दे रहे हैं। आपकी बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर पेपर एक्चुअली। तो इसके लिए यही है कि आप पहले अपनी ग्रामर को ठीक करें, थोड़ी छोटे छोटे राइटिंग पैराग्राफ्स करें। छोटे पैराग्राफ्स करने के बाद आप बड़ी चीज़ों के ऊपर जाएं, बड़े पैराग्राफ्स लिखें। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड इन माय प्रेपरेशन। स्पीकिंग इम्प्रूव करना इज़ द नेक्स्ट फेज नासिर, एंड यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन योर इम्प्रूविंग योर ग्रामर स्किल्स, इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स। सो उसको कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई ना कोई प्रेपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर आपकी ग्रामर इंप्रूव हो रही हो, साथ में आप, मैंने रेड एंड मार्टिन की बुक रिकमेंड की, कोई और भी बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें ग्रामर हो, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस मेकिंग हो, उसमें आपको टेंसेज आते हों, ये सब चीज़ें, आपकी पंक्चुएशन में कोई मिस्टेक ना हो, आपकी प्रपोजिशंस ठीक हों, आपको आर्टिकल्स का यूज़ आता हो। स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ द बेसिक सेंटेंस, ये एग्जामिनर की रिपोर्ट्स के मुताबिक है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आपको एक तो ये है कि आपको अच्छी आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होने के बाद है कि आप जब पेपर लिख रहे हैं तो आप बहुत विजिलेंट तरीके से, बहुत अटेंटिव तरीके से वो पेपर अटैम्प्ट करें। उसी बेसिस के ऊपर जो है वो आपकी जो है आपकी इस तरह की ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है कि आप फोकस तरीके से काम करते हैं। जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपको अपने आप को परेशानी से मैक्सिमम दूर रखना होता है। इसका तरीका यही होता है कि
राइटिंग के, कि आपको ये ना लगे कि मैं पहली दफ़ा लिख रहा हूँ, या आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। ये सब कुछ आता है आपकी राइटिंग से। और अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मैंने इंग्लिश ऐसे की सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की, मैंने ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की है। राइटिंग के लिहाज से मैंने पंजाबी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखे, मैंने इंडो पाक के किए, पोलिटिकल साइंस के, करंट अफेयर्स, इस्लामियत, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, मैं उस सब को ही मैं ऐसे की प्रैक्टिस समझती हूँ कि ऐसे तो किसी भी इशू पर आ सकता है, और आपके एक्चुअली वो सब सब्जेक्ट्स ही होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि आप अल्टीमेटली जो है अपना ऐसे का पेपर अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, उसके अलावा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज होता है आप सबके लिए, और उसके लिए है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, बैचलर्स इन एनी सब्जेक्ट, दैट कुड बी सिंपल बैचलर्स डिग्री। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा प्रोसेस होता है इसके अंदर, एक्चुअली दे हैव टू मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोविंशियल पीपल, लाइक आपको इट इज़ एन ऑल पाकिस्तान सर्विस, जहाँ पर आपको स्पेशली डीएमजी और पुलिस या आपके जो हैं ओएमजी में भी शायद इट इज़ ऑल पाकिस्तान सर्विस। तो आपको जो ये ग्रुप्स होते हैं या बाकी सब ग्रुप्स हैं, आपको फेडरल लेवल पर अपने आप को जो है वो आप परफॉर्म करना होता है, अपनी सर्विस देनी होती है। तो गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारा रिक्रूटिंग मैकेनिज़्म है, रिक्रूटिंग सिस्टम है, उसकी कोशिश होती है कि हम हर एरिया के लोगों को इक्विटेबल चांस दें, बिकॉज कुछ जगहों पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है दैट इज़ बिलो एवरेज, दैट और कुछ जगहों पर है दैट इज़ अबव एवरेज। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ फ्लॉज हैं, वो एक सेपरेट इशू है, उसको हम इक्विटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो हर एक प्रोविंस का सेपरेट कोटा होता है, जिस कोटे की बेसिस के ऊपर उनको सीट्स दी जाती हैं। लाइक 50% सीट्स पंजाब की हैं, इसी अकॉर्डिंग कुछ होती है मेरिट की, जनरल मेरिट की सीट्स होती हैं, कुछ वेमेन कोटा की सीट्स होती हैं जो कि हर प्रोविंस में से निकलती हैं। पंजाब की अलहदा, केपीके की अलहदा, सिंध की अलहदा, और उसकी एजे की अलहदा से सीट्स होती हैं, जीबी पाटा की भी। ठीक है, तो आपको एक्चुअली आप जब क्वालिफाई भी करते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, इंशाल्लाह आप सब लोग क्वालिफाई करें, तो उसके बाद जो है आपको अपनी ही सीट्स में से सीट मिलती है। अगर आपकी मेरिट नंबर काफ़ी आगे चला गया, लाइक 250 आप हैं या 200 के पास हैं और आप पंजाब से हैं, तो आप एलोकेट नहीं होंगे। आपकी जगह जो बच्चा केपीके से या जीबी से होगा, जिसका मेरिट नंबर इवन 300 अपने प्रोविंशियल कोटा की सीट के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है बेस्ट एकेडमी के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, जिस तरह मिनाल, तो मिनाल बेस्ट एकेडमी आई वुड सजेस्ट के एकेडमीज़ तो आपको सिर्फ असिस्ट करती हैं, आपकी गाइडेंस में हेल्प आउट करती हैं। तो यू पीपल कैन ज्वाइन आईसेप, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि एक्चुअली आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग है, वो करते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलरली इंग्लिश। यहाँ पर इनके फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं जो कि लाइक अराउंड 1 मंथ का इनिशियली होता है, जिसके अंदर आपकी बेसिक ग्रामर, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी राइटिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनर आपका माइंड नहीं पढ़ रहा वहाँ बैठ के, आप जो अपने पेपर पे पोर्ट्रे करके आ रहे हैं, जो प्रेजेंट करके आ रहे हैं, आपका एग्जामिनर वो देख रहा है, एंड दैट इज़ ऑल योर राइटिंग दैट कम्स आफ्टर रीडिंग सम लाइक रिसोर्सफुल मटीरियल। तो इसलिए जो है सबको एज एन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं आप लोगों को कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं। जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें स्कोर ज़्यादा होता है, कंपलसरी में स्कोर्स कम होता है। अगर जिस तरह ऐसे है वहाँ पे हार्डली ऐसे सबसे टेक्निकल पेपर है, उसके बाद प्रेसी का पेपर है, तो जो ऐसे का पेपर है उसमें हार्डली लोग 40 मार्क्स पर पास होते हैं। ठीक है, दिस वाज द केस विद मी एज वेल एंड मेनी अदर क्वालिफायर्स who are in the top groups। तो ये कोई इतनी बात नहीं है, 40 मार्क्स ही एक्चुअली आपकी CSS को सिक्योर कर देते हैं। ऐसे को कभी भी लोग इस तरह कंसिडर नहीं करते कि उसमें मुझे कोई 60 स्कोर करना है, मुझे कोई हाई स्कोर करना है। ऐसे को सिर्फ इस सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि मुझे ऐसे पास करना है, क्योंकि ऐसे इज़ द मेजर सब्जेक्ट जहाँ टू CSS। इसके लिए जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जो है क्वालिटी पेपर प्रेजेंट करने के लिए, ऐसे का पेपर प्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले
अपने टॉपिक सेंटेंसेस को रीड करना। ग्रामर की बात होगी, आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि आपको टॉपिक इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। ये तब आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। आईसेफ में भी ऐसी प्रैक्टिस कराई जाती है, दैट्स वाई सजेस्टेड कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि आप लोग जो है उसको टॉपिक्स लेते हैं। जितने भी आप पास पेपर्स लिए, मैंने खुद पास पेपर्स की ही एसेस प्रैक्टिस किए थे, पास पेपर्स की ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। सो आई कैन सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग भी उन पास पेपर्स को कंसल्ट कीजिए। पास पेपर की स्टेटमेंट, पास पेपर्स एक्चुअली मैं इसलिए सजेस्ट करी क्योंकि आपके जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर किस तरह का पेपर जाता है वो आप लोगों को पता चल जाता है पास पेपर्स देखने से। और पास पेपर में जो एसेस है आप उनकी इंटरप्रिटेशन करें, उनके ऊपर एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और आउटलाइन बनाएं। इस तरीके से आपको इजी, टफ, हर तरह के टॉपिक्स हैंडल करने आते हैं। मैं आप लोगों को जो 40 मार्क्स वाली बात कर रहे हैं आप इसमें से कई स्टूडेंट्स, तो 40 मार्क्स भी एक क्वालिटी ऐसे को मिलते हैं। क्वालिटी ऐसे जो है वही 40 या 40 से ऊपर मार्क्स ले पाता है। अगर उसमें ज़रा से भी कोई फ्लॉस हैं, थोड़े से भी फ्लॉस, तो वो इवन 40 भी स्कोर नहीं कर पाता। 40 का मतलब है कि जो इंग्लिश पेपर का चेकर है वो कंसिडर कर रहा है कि दिस पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट, दिस पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंसाइट, दिस पर्सन कैन परफॉर्म बेटर, ठीक है। तो उस बंदे को ही वो पास करता है जिसने अपना ऑर्गेनाइज्ड पेपर लिखा है, जिसने एग्जामिनर को ऐसा विजन दिया है कि वो हर तरह की डिस्कशन प्रेजेंट कर रहा है, उसका विजन भी ब्रॉड है, वो केस स्टडीज में प्रेजेंट कर रहा है और वो ऐसे के टॉपिक को टारगेट करे, ना कि वो जनरली जो उसका रट्टा सिस्टम है, उसने जो सिस्टम जो अपने अंदर इनकलकेट किया हुआ है, जो उसका अपने अंदर वो क्रैम करके एब्जॉर्ब करके वो सब एज इट इज़ वॉमिट आउट कर दे पेपर के ऊपर, ठीक है। दिस इज़ नॉट द थिंग दैट कैन हेल्प यू आउट। आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी ऐसे में बहुत मैटर करती है। उसके अलावा आपकी इंटरप्रिटेशन एंड ग्रामर, ये चार वो चीज़ें हैं जो कि ऐसे में मैटर करती हैं और ये चारों चीज़ें ही राइटिंग प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है मैं अब आपको बताऊंगी कि इंग्लिश ऐसे की आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई। प्रेसी की अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रेसी का पेपर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी टेक्निकल पेपर बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड इनटू सर्टन सेक्शन, सब सेक्शंस। उन सेक्शंस के अंदर जो है आपको हर सेक्शन में परफॉर्म करना होता है। उसमें ईडियम्स होते हैं, उसमें एंटोनिम्स होते हैं, उसमें सिनोनिम्स होता है, क्या बोलते हैं इसको, लाइक आपकी वो जो है ईडियम्स होते हैं, इसके अंदर पंक्चुएशन होती है। उसके अलावा प्रेसी आप लिखती हैं और एक होती है वो जो आपकी क्या उसको बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग, उर्दू की ट्रांसलेशन होती है। और 20 मार्क्स का एक होता है आपको पैराग्राफ होता है जिसमें से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सो आपकी वो आपका एक्चुअली जो प्रेसी का पेपर है ना, वो असल में रीडिंग का पेपर भी है और राइटिंग का पेपर भी है। बिकॉज आप पहले अगर आप चीज़ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तो ही आप अच्छी प्रेसी कर सकते हैं। और इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डॉन के या कुछ इस तरह के आर्टिकल्स, पहले छोटे सिंपल आर्टिकल्स और फिर कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स लें और उनको उनकी प्रेसिस बनाएं, ठीक है। उनको अच्छे मेंटोर्स से चेक करवाएं, जिस तरीके से यहाँ पर जो आईसेफ एकेडमी है ऐसे के लिए यहाँ पर उमेर साहब अवेलेबल हैं और प्रेसी के लिए नदीम अयाज साहब। दीज आर द टीचर्स हु वुड हेल्प यू आउट, हु वुड हेल्प यू आउट इन योर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आपने यही करना है कि जो है प्रेसी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्रेसी की जो प्रैक्टिस है वो अपने ऑलमोस्ट आप सेकंड और थर्ड डे आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। और इसके अंदर क्योंकि रीडिंग बहुत मैटर करती है, तो जब आप अपनी रीडिंग की अपनी कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली आप कॉन्टेक्सुअल मीनिंग्स को समझ सकेंगे। जो प्रेसी आती है पेपर में वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कई दफ़ा ईजी भी होती है। 2020 के अंदर इट वाज क्वाइट इजी क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस थे। कई दफ़ा उन्होंने पंक्चुएशन के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए होते हैं, दो तीन बातें एक ही सेंटेंस में जोड़ी होती हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप लोग जो है उन आप उस ओके, आई बिलीव कि आपको डिस्टॉर्शन नहीं है आवाज़ में, तो सो वी कैन कंटिन्यू इट। तो
असल में आप लोग जो मुझसे उसकी ऐसे की पूछ रहे हैं, तो आप लोग पहले अपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखेंगे। पैराग्राफ्स के बाद अब आप बेहतर पैराग्राफ्स लिखने लग गए हैं, आप टॉपिक्स इंटरप्रिटेशंस करने लग गए हैं, आप लोगों को आउटलाइन मेकिंग आ गई है कि मुझे इस अपने ऐसे में 2500 वर्ड्स किस तरह प्रेजेंट करने हैं कि मुझे एक बड़ा होराइजन दें, एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिले एग्जामिनर को। मैं अगर कॉजेज़ बता रहा हूँ तो मैं कॉजेज़ बताऊँ, ठीक है, इतनी एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद मैं उसकी इम्प्लीकेशन बताऊँ फॉर पाकिस्तान। कॉजेज़ ऑफ वाटर क्राइसिस फॉर इंस्टेंसेस आर ऐसे, तो मैं उसकी इम्प्लीकेशंस बताऊं और फिर मैं बताऊं कि वाटर क्राइसिस की कंपैरिजन करूं उन कंट्रीज़ के साथ जो वाटर स्ट्रेस्ड हैं, जो वाटर स्कार्स हैं, फिर वाटर सफिशिएंट हैं, उन्होंने कौन से सिस्टम्स यूज़ किए हैं कि वो वाटर सफिशिएंट हैं, और हाउ दैट सिस्टम्स कैन बी यूज्ड और कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय पाकिस्तान, वेदर दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल, और हाउ किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो उनको अपनी कंट्री के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है, उन सिस्टम्स को, उन स्ट्रेटजीज़ को, उन प्लान्स को किस तरीके से कंसेंसस बिल्डिंग कर सकता है अपने प्लान्स के लिए कि हम वाटर क्राइसिस से बच सके। सो दिस ऑल जो कैन बी डन व्हेन वी हैव अ ब्रॉड होराइजन। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपने इशू की अंडरस्टैंडिंग है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, देन वी हैव आवर केस स्टडीज अवेलेबल, वी कैन डू कंपैरिजंस, वी हैव स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल। इसके लिए आपको हर ऐसे के लिए जब आप अटैम्प्ट करेंगे, लिया है कोई भी टॉपिक है, लाइक मेरा टॉपिक है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, तो मैंने पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के ऊपर अगर लिखना है तो मैं पहले उसको सर्च करूँगी गूगल पर, उसके लिए अच्छा मटेरियल पढ़ूँगी, 5 से 6 आर्टिकल्स पढ़ूँ, उसके अलावा उसमें से कुछ अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्सट्रैक्ट करूँ अपनी, और क्या क्या चीज़ है जो कि मुझे ज़रूरत है इसमें बताने की, फिर उस पर मैं फोकस करते हुए अपना ऐसे अटैम्प्ट करूँगी। तो यही वो तरीक़ेकार है कि आप लोग अच्छी स्टडी करें, अच्छा रिसोर्स इकट्ठा करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। आप लोगों को एटलीस्ट एक कंप्लीट ऐसे जो है वो एक वीक में ज़रूर लिखना चाहिए, और अगर एक कंप्लीट ऐसे नहीं तो एटलीस्ट आपको 2 दफ़ा चली कर लें, आपको आउटलाइन और इंट्रोडक्शन लिखने चाहिए। यही वो तरीका है जिससे आप CSS क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि CSS इज़ ऑल अबाउट राइटिंग स्किल्स। उसके बाद जो है प्रेसी की भी मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दी। प्रेसी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेटली अब उन सब कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो आप उन सब की लहदा प्रैक्टिस करें। जो उसमें से असल में प्रेसी मेकिंग होती है वो ज़्यादा आर्टफुल चीज़ है, और उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं फ्रॉम अ पैराग्राफ, तो इसके लिए जो है आप लोग को ज़्यादा ईडियम्स जो है उसके लिए आपको सेंटेंस मेकिंग, जब आपने ऐसे की प्रैक्टिस की, आपने शुरू में सेंटेंस मेकिंग सीखी, तो यू हैव लर्न हाउ टू राइट लाइक सेंटेंस दैट इज़ फुल इन इटसेल्फ। आप लोगों को सिर्फ सिंपल सेंटेंस नहीं लिखने लायक, आप समझे, अगर तो आप कहेंगे दिस इज़ अ चेयर, को सिर्फ ये बता, आपको एक ऐसी सेंटेंस मेकिंग करनी है कि आप वो इस तरीके से अपना ईडियम्स पे क्या आपके सेंटेंस बनाने होते हैं कि आप वो ईडियम ऐसे यूज़ करें कि उस ईडियम से जो है आपके जो चेकर है उसको समझ लग जाए कि इस बंदे को इस ईडियम का सही से पता है, इसने सिर्फ एक शॉर्ट सेंटेंस बना के उसको सिर्फ मुझे ये पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की। इस तरह का जो सेंटेंस मेकिंग होती है उसको हमेशा ज़्यादा स्कोर मिलता है, मतलब लाइक पूरा 1 मार्क होता है उसका, यहाँ अब 2 मार्क्स भी लास्ट टाइम। सिंपल ही लिखें लेकिन एक्सप्लेनेटरी लिखें, ठीक है, कम्प्लीटली एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हो आपका। उसके अलावा जो है कुछ मुझसे फ्लावरी लैंग्वेज के बात है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्लावरी लैंग्वेज ना एग्जामिनर पसंद करता है और ना आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एनालिटिकल, आपकी रियलिस्टिक राइटिंग जो है वो मैटर करती है। रियलिस्टिक राइटिंग के लिए मैंने आपको बोला कि आप कोट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करें, ताकि आपका प्रूफ हो कि आपको एक तो ये कि कोर्स से ये प्रूव होता है कि आपने अच्छी अथॉरिटी वाली बुक्स पढ़ी हुई हैं और आप लोगों की एक टॉपिक के अंदर डीप इंसाइट बिल्ट है, ठीक है। उसके बाद आप अपना फिगर्स प्रेजेंट करें। जब आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करेंगे तो आपकी उसको रियलिस्टिक बनाएगा, आपकी फ्लावरी लैंग्वेज नहीं देखनी वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं आप लोगों को इसी से रेलिवेंट अगर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए ISEF जो है वो अपना एक सेशन शुरू कर रहा है। उनका फ्री सेमिनार है जो कि 6 जून को कंडक्ट किया जाएगा एट 5:30 PM। आप लोग प्लीज़ वो अटेंड कीजिए, और दैट इज़ ऑल अबाउट देयर प्लानिंग फॉर द सेशन, फॉर द अपकमिंग सेशन। और BCSS टॉपर्स जो हैं वो इस सेशन को वहाँ पर लीड करेंगे। उसके अलावा रेगुलर क्लासेस हैं जो कि 7 जून से
स्टार्ट होंगी 7 जून से 5:30 PM और वो 9 मंथ्स तक की क्लासेस हैं। 9 मंथ्स का मतलब है कि कम्प्लीटली आपको रीडिंग की, राइटिंग की, हर तरह की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके अलावा जो आईसेप है उसके अंदर वीकली एक एक बुकलेट आपको बनाकर दिया जाता है जिसमें आपके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो उनके जो उनको डीकंस्ट्रक्ट करके दिया जाता है। डीकंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि प्रेसी में भी आता है। उसके अलावा भी डॉन ने आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके आर्टिकल्स को समझने के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आईसेप उसमें आपके काम को बहुत आसान कर देता है। आपकी जब वो आर्टिकल्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस एक आर्टिकल है जिसके अंदर इशू है, आपको मेन इशू बताया गया कि ये इशू हमारी सोसाइटी में है, फॉर इंस्टेंस टेररिज्म का, कि टेररिज्म आप पहले बताया जाएगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म कितना को प्रेवलेंट है, ठीक है। अब उसके बारे में आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर कोई सेंटेंस मिल जाएगा, वो आपको डीकंस्ट्रक्ट करके लैदा कर दिया जाएगा। उसके बाद उसके नीचे कुछ कॉजेज बताए होंगे कि ये टेररिज्म एक्चुअली क्यों यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सो आप उन कॉजेज को लैदा कर लीजिए, उसके नीचे कोई वे फॉरवर्ड होगा तो एक्चुअली वो आर्टिकल डीकंस्ट्रक्ट होके जो उसमें से रिसोर्सफुल मटेरियल है वो निकाल के आपको सेपरेटली दिखा दिया जाता है। सो दिस इज हाउ आपको बहुत सारी जगहों पर अपनी नोट्स मेकिंग भी नहीं करनी पड़ती, आप उन्हीं नोट्स को यूज़ करते हैं, पास एडिटोरियल्स हैं उसको यूज़ करते हुए आप अपना कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा लोग टाइम टेबल के बारे में पूछ रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको अपने एग्जांपल लेती हूँ, टाइम टेबल आपकी सबसे बड़ी आपकी मोटिवेशन है। जब आपको करना है तो मैं आपको अपनी बताऊँ कि मैं सिर्फ अपने उन 4 माह में सोने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। खाना पीना सोना और बस पढ़ना, ये मेरा था कि मैंने ऐसा कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ था। हाँ, मुझे ये पता था कि मुझे हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। अभी मैं आज मैं ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ लेती हूँ, इसके कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेती हूँ, कल मैं ये वाले 3 पढ़ लूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने कम्प्लीटली डिवाइड किया हुआ था। या आज मैंने 2 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, या मैंने हफ्ते में इतने एसेस लिखने हैं, इतनी दफ़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने खुद अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में की। उसके अलावा आप लोग जो हैं अपने टारगेट सेट करें कि मुझे आज के दिन में कितना पढ़ना है। अगर उसके लिए आपको चाहे ज़्यादा टाइम लगे चाहे कम लगे, आपको वो कंप्लीट करना है। दिस इज़ हाउ आप लोग इतने ब्रॉड सिलेबस को तभी कवर कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी का क्राइटेरिया ये होता है कि आप लोग जो है ये डीकंस्ट्रक्टेड, जिससे मैंने मैगजीन्स की बात बताई कि आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, तो ये स्मार्ट स्टडी है। जो टाइम आपने पूरा आर्टिकल 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, उसके बाद आपने उसमें से चीज़ें निकालनी है, तभी आपको समझना है कि कौन सी मेरे लिए प्रोडक्टिव चीज़ है और कौन सी चीज़ है जो मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ। तो आपको ये भी नहीं पता लग रहा तो इस चीज़ में आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। वो जो आपने 2 घंटे खुद लगाने हैं वो आपको एक प्रिपेयर्ड चीज़ मिल जाएगी, आप 15 से 20 मिनट पढ़ के पूरी चीज़ समझ लेंगे, ठीक है। ये आपको इसी तरीके की ये आपको इन जो है प्रोवाइडेड जो आप होंगे बुकलेट्स, उनका ये फ़ायदा है। उसके अलावा स्मार्ट स्टडी के अंदर है कि मैंने आपको बताया कि आप पूरी की पूरी जो रेफर्ड बुक्स हैं वो मत पढ़ें, उनमें से कुछ अच्छे कोर्स निकालें। जिसमें फॉरेन पॉलिसी भाई अब्दुल सत्तार है, उसमें से आप लोग फॉरेन पॉलिसी से रेलिवेंट कोर्स, गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, उसमें से मैंने कोर्स निकाले थे। मैंने तो अपना पब्लिक एड का आधा पेपर ही वहीं से प्रिपेयर किया था, तो उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया क्योंकि ये लो स्कोरिंग है। फिर भी मैंने उसमें बेहतर किया, जितना 57 स्कोर किया था वो बेहतर था अपने इसके स्कोरिंग ट्रेंड के मुताबिक। तो ये इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने अच्छे कोर्स निकाले थे, अच्छी बुक्स पढ़ी हुई थी। आप बेसिक चीज़ें पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, कोई भी की बुक ले लें, उसके बाद जो है कुछ ना कुछ अच्छे से आप अपने वो एक्सट्रैक्ट करके रखें चीज़ें जो हैं आपके पास, कोट्स वगैरह, जिन कोट्स को आप यूज़ करें। उसके अलावा आप उसी से रेलिवेंट कुछ अच्छे फैक्ट एंड फिगर्स कलेक्ट कर लें, जो कि आपको मैंने बताया कि डीकंस्ट्रक्टेड इन आर्टिकल्स में से भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आप गूगल से भी अच्छी वेबसाइट से, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, IMF की वेबसाइट है, पाकिस्तान का ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, उन सब से आपको अच्छे वो मिल जाएंगे। आप इसमें से चीज़ें फैक्ट एंड फिगर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यही पढ़ के जाना है जब आपका शुरू हो रहा होगा पेपर। तो पेपर से पहले ये सब चीज़ें, क्योंकि आपने जो फ्रेशली चीज़ें पढ़ी हैं वो आप अपने पेपर में बहुत अच्छी लिख सकते हैं। मैं भी जाने से पहले ज़रूर कोई 8 to 10 कोर्स अपने हर पेपर से पहले पढ़ के जाती थी, और मैं हर तरह से ये कोशिश करती थी कि मैं किसी न किसी तरह उन कोर्स को इनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूं। और मेरे हर पेपर में अराउंड 4 to 5 कोर्स होते थे, और मैं काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यूज़ करती थी। और जब भी मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करती थी, मैं एक काम जो खुद करती थी और आपको भी वही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने हर फैक्ट एंड फिगर को एक्सप्लेन करें कि मैं किस तरीके से अपने टॉपिक के साथ ही अपने एक
पैराग्राफ के साथ इसको एसोसिएट कर रहा हूँ। यही काम आपने पंजाबी का पेपर है या कोई कोट लिखा है तो उसके लिए उसको एक्सप्लेन करें। आपने वर्सेस लिखे हैं इस्लामियात में तो उनको एक्सप्लेन करें। इसी तरीके से एग्जामिनर को समझ आती है कि बच्चा सिर्फ क्रैम करके नहीं आया, इसकी अंडरस्टैंडिंग है और ये पता है इसको कि मैंने अपनी कौन सी बात क्यों लिखी है। ठीक है, ये सब हो गया। इट्स गुड कि आप 12 to 15 अगर आप करें या 4 to 6 मंथ्स की प्रेपरेशन 12 to 15 आवर्स दें। अगर आपके पास अभी 9 मंथ्स है, अभी से जो स्टार्ट करें उनके लिए 7 आवर्स 6 आवर्स ये भी काफ़ी टाइम है। ठीक है, लेकिन आपने पूरी कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करनी है। ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप यूज़ करें, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, साथ ही आप पढ़ रहे हैं, आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ठीक है, और साथ में आप पढ़ भी रहे हैं, या फिर आप ये है कि दोस्तों ने बुला लिया तो चले गए और कभी कहीं चले गए, कभी किसी के गेट टुगेदर पर चले गए। सो आपको ये सब सोशल एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी होगी। और जिस तरीके से अभी कोविड का पीरियड है, डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ सकते हैं। उसी को समझते हुए आप घर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप उसको अपनी अच्छी प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह CSS इज़ नॉट दैट मच टफ जॉब एज इट इज़ कंसिडर्ड। ठीक है, आप ये जब होता है तो फिर पता भी नहीं चलता। ठीक है, अपनी बेस्ट तैयारी रखिए, मैक्सिमम अपने जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखिए। ठीक है, उसके अलावा प्रेपरेशन स्टार्ट करने का तरीका, तो प्रेपरेशन मैं आप सबको कहूँगी कि आप लोग जो हैं अपने उससे करें इंग्लिश फाउंडेशन से। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स, सिंस इट इज़ अ कम्पिटिटिव एग्जाम एसोसिएटेड विद पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तानी रिक्रूट होते हैं, तो इसके लिए ये है कि आप लोग पहले पाकिस्तान अफेयर्स को शुरू करें, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेगा। आपको अपने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज, अपनी जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की वो सारी पता लगेगी। साथ में आप जो अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग करें इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश राइटिंग करें। जब आप इन सब चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, आपको पता लग गया कि मुझे ये चीज़ें मुझसे हैंडल हो रही हैं, फिर आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ जाइए। ठीक है, उसके अलावा मैं खुद भी ISEP के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स की चंद क्लासेस लूँगी। ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को खुद भी पाकिस्तान अफेयर्स करवाऊँगी और अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करवाऊँगी, आपके साथ डिस्कशन भी करूँगी ओनली फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, जो कि पूरे CSS की जिस्ट है, जिसके अंदर वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो ISEP की स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आपको 9th मंथ का पूरा एक जो कि मेरे ख्याल में 9 मंथ और इनफ पीरियड, उसमें आपको अच्छी मेंटरशिप मिल रही है, अच्छी गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो आप लोग इस सेशन के थ्रू जो है वो अच्छी अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। और लास्टली आखिरी जो मंथ होगा, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उसको घर में बैठ के अपनी जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं और की तरफ मत जाइएगा, उसको ही रिवाइज कीजिए, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि CSS स्मार्ट स्टडी है, हार्ड वर्क नहीं है कि आपने हर चीज़ नहीं करके जानी। ठीक है, ये कोई रिसर्च नहीं हो रही है, कोई PhD नहीं हो रही है, आपने अपने एक 20 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना, 6 to 7 पेजेस, आपने उस पर कोई बुक्स नहीं लिखनी, इसलिए आपके पास इतना ही मटेरियल होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको उसको स्ट्रॉन्गली अपने मटेरियल को अलावा जो है प्रेपरेशन स्ट्रेटजी फॉर O लेवल स्टूडेंट्स। O लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी वही है, उनको यहाँ पे भी वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज, कोई फैंटेसी वाली इडियोमेटिक यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरत पड़ सकती है कि वो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल बनाएं। आई वॉन्ट से कि उनकी कोई इतनी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, लेकिन उनका ये इशू अराइज हो सकता है। सो आप लोग उनके लिए भी यही है कि वो अपनी शुरू में राइटिंग करके देखें, वो राइटिंग में कहाँ फॉल करते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रेपरेशन शुरू करें। ठीक है, 15 to 20 डेज़ एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी होते हैं कम्प्लीटली प्रिपेयर करने के लिए उस सब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद जब आप सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके देखें, ताकि आपको पता लगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी डेवलप हुई हैं उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट। ठीक है, ये सब हैं आपके, और इसी तरीके से आपने कैरी ऑन करते जाना। एंड में आपने कहीं मॉक्स वगैरह और जिस तरीके से ISEP है वो जब आपकी प्रेपरेशन हो जाती है तो उसके बाद एक कंटिन्यूस टेस्ट सेशन चलता है, तो आप उस टेस्ट सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी ये है कि करंट अफेयर्स यूजुअली जो है, सिंस इट इज़ करंट अफेयर्स, तो वो करंट इश्यूज से रेलिवेंट होता है। उसके लिए आप लोगों के लिए बेहतर है कि जो करंट अफेयर्स है आप लोग
इतना हिस्ट्री में मत जाएं, इतना डिटेल्स में मत जाएं। आप उनकी जो इश्यूज़ चल रहे हैं, इश्यूज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। फॉर इंस्टेंस अभी पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, तो मुझे पैलेस्टाइन के बारे में पता होना चाहिए कि पैलेस्टाइन का इशू अराइज किस तरीके से हुआ, वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स प्रिवेल करती हैं, कौन है जो वहाँ पे फेयर प्ले कर रहा है, कौन है जो सफ़र कर रहा है, ऑपरेशन किस पे हो रहा है, कौन कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं जो प्रेजेंट किए गए हैं, मिडल ईस्ट ने क्या रोल प्ले किया है, यूएस का क्या रोल रहा है, बिग पावर्स का क्या रोल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कौन सी रेजोल्यूशंस दी है, यूएन ने कौन सी रेजोल्यूशन दी है। फॉरवर्ड निकालिए तो रियलिस्टिक है। आपने ये नहीं कहना आइडियलिस्टिकली कि हाँ बस आप उनको 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दें, आप कुछ मत सोचें, बस आप इमीडिएटली एक 2 स्टेट सोल्यूशन दे दें, तो जो इस तरीके से यूएन कहती है तो आपका मसला हल हो जाएगा। ये नहीं, आपको वहाँ की जो एथनिक इश्यूज़ हैं, आपके डिसीजन से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उन सब को दे के एक रियलिस्टिकली उनको आपने टेबल ऑन द टेबल ला कर उनसे डिस्कशन करके उनकी कंसिडरेशन करा के फिर आपने एक डिसीजन लेना है, ठीक है। और 2 स्टेट सोल्यूशन ही वैलिड सोल्यूशन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एडवांस अप्लाई कर दें, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है कि हमें इस तरह की जो बिग पावर्स हैं उनको कंडेम करने की ज़रूरत है, ना कि उनको कॉन्विनेंस दें, उनको सपोर्ट दें। तो इस किस्म के आपने रियलिस्टिक सोल्यूशन प्रेजेंट करने हैं। उसके अलावा ये है कि आप जो लास्ट 3 to 4 मंथ्स होते हैं, बेहतर है कि आप करंट अफेयर्स उससे रेलिवेंट, तो आप वो बेसिक्स पहले कर लें, लेकिन करंट अफेयर्स को आप लास्ट में जाके करें, ताकि अब तब तक इश्यूज जो हैं आपको पता लग जाएगा कि ईयरली एंड पे क्या सिचुएशन कल्मिनेट हो चुकी है इस साल की और किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। उस टाइम आप ज़्यादा क्लियर होते हैं। उनके भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा एडिटोरियल्स पढ़िए, मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आप उन मैगजीन्स को पढ़िए। और उसके अलावा गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं अच्छी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, या फिर अच्छे चैनल्स हैं, अल जज़ीरा है, फॉरेन अफेयर्स है, आप उनके आर्टिकल्स को पढ़िए और उनसे अपनी पूरे इश्यूज़ को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। उसके अलावा अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें आप कॉजेज, इम्प्लीकेशंस, वे फॉरवर्ड, ठीक है, जो करंट मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो आपने लिखी हो, ताकि वो आप अपने पेपर से पहले पढ़ के जाएं और आपकी कोई चीज़ भी जो है वो मिस ना हो। रिकमेंड पाकिस्तान अफेयर्स के लिए की बुक्स आपको कई अवेलेबल हैं, आप एक आध की बुक ले लें, क्योंकि आपको ज़रूर कि आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे किस टॉपिक को कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। उसके अलावा आप रिकमेंडेड बुक पढ़ें, जिस तरह मैंने पढ़ी थी पाकिस्तान एट द क्रॉस करंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। आप भी वो बुक अच्छी बुक है, रिकमेंडेड बुक है, आप वो ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा मैंने पढ़ी थी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। उसके अलावा मैंने पढ़ी थी गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ठीक है। इस तरीके से आप 2 से 3 बुक्स पढ़ें, रिकमेंडेड बुक्स, उसमें से अच्छे से कोट्स निकालिए, वो कोट्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इनको यूज़ करते सिर्फ इनको आपने अपने पेपर पर नहीं जो है वो प्रेजेंट करना, आपने इनको एक्सप्लेन करना है, इनके साथ अपना एनालिसिस डेवलप करना है। पहले आपका इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर क्वेश्चन का। आपने पूरी जो की इशू है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आप उसको कम्प्लीटली एड्रेस कीजिए, ठीक है। जब आप उस क्वेश्चन को एड्रेस कर लेंगे तो आप उस क्वेश्चन की एग्जामिनर को बताएं कि आप क्या स्ट्रेटजी, उसकी टॉपिक की इंटरप्रिटेशन कीजिए, उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उनको डिफ़ाइन कीजिए। फिर आप जो है उसको इस इंट्रोडक्शन के बाद आपने एंड में 2-3 लाइंस के अंदर आपको ये डिफ़ाइन करना होगा कि आपकी अगले आप जो कॉजेज़ लिखने वाले हैं वो क्या कॉजेज़ हैं और आप किस तरीके से इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे आ जाता है कि बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, या आप ये कह लें कि पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। तो आई वुड अग्री विद द स्टेटमेंट आई हैव टू प्रूव फर्स्टली के हाउ पाकिस्तान इज़ रिच इन द रिसोर्सेज, पाकिस्तान के पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, देन हाउ इट इज़ पुअर इन मैनेजमेंट, क्या पॉलिसी मेकिंग में फ्लॉज आ रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करने के बजाय पाकिस्तान और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों को यूज़ करने के बजाय पाकिस्तान किस तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज को इम्पोर्ट कर रहा है, हाउ पॉलिसी में क्या फ्लॉज हैं कि तो ये सब चीज़ें वो हैं, ठीक है। उसके बाद आप उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिएगा और इसमें पूछ रहे हैं आईआर एंड आई लॉ की गाइड करें। आईआर एंड आई लॉ दोनों मेरे सब्जेक्ट्स नहीं थे, हाउएवर आई लॉ इज़ अ गुड, आईआर इज़ अ गुड सब्जेक्ट, आपको करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प करता है, आपका एनालिसिस बिल्डिंग में हेल्प आउट करता है। आईआर के लिए जो है जब आप आईआर पढ़ लेते हैं तो आईआर का एक थियरेटिकल तरीका होता है, आप इसमें बहुत सारे जार्गन्स होते हैं यूज़ करने होते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में आप वो जार्गन्स यूज़ नहीं करते। आईआर इज़ अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, इस बार लोगों के बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं, सो आप लोग इसको एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं,
ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के मैं क्वेश्चंस देख लूँ। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के लिए बुक्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए एक है समथिंग, बुक का नाम है बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की कुछ बुक है, मजरुल हक की वो बुक है। मजरुल हक, आप नाम ही किसी वहाँ पर जाकर बुक शॉप पर आप उनसे कहिएगा कि उनकी पॉलिटिकल साइंस की बुक दे दें, तो वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक बुक है। वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसके अंदर बहुत अच्छे आपका तकरीबन आधा सिलेबस उस बुक से कवर हो जाता है, और उस बुक के अंदर आपको इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ, एग्जांपल्स के साथ चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है आपके पेपर में। इवन आप उसमें से चीज़ें कोड भी कर सकती हैं। और मजरुल हक से आपने खुद अपनी बुक में जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा CSS का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी उन्होंने विदाउट एविडेंस अपनी कोई बात नहीं की। आपको जब भी ऐसे, ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए, हर पेपर के लिए, जब भी आपको कोई एक पैराग्राफ के अंदर दो लाइंस के अंदर आप अपना स्टांस बताएं, ठीक है, फिर उस स्टांस को आप लोग सपोर्ट करें किसी अच्छे एविडेंस के साथ, अच्छे कोट के साथ। जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसको फिर आप एक्सप्लेन कीजिए कि मैंने एविडेंस या कोट लिया, किस तरीके से मेरे टॉपिक से रेलिवेंट है। कि फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे ये नंबर है, तो मैंने उसको अपने बैड गवर्नेंस के टॉपिक के अंदर यूज़ किया। तो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ कि जो हमारी पब्लिक एक्सचेकर है, पब्लिक मनी है, इंस्टेड ऑफ being expended on Pakistan's it is being used by the people who are responsible for governing our country। तो इस तरीके से मैंने बताया कि ये जो करप्शन आ रही है, मेरी इस बात को प्रूफ कर रही है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक मनी है, जो हमारा डेट सर्विसिंग है, डेट क्राइसिस है, या जो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट, जो हमारा, बल्कि इसलिए आ रहा है कि हमारी पब्लिक मनी जो है वो करप्शन में यूज़ हो रही है, हमारी पब्लिक मनी मिसमैनेज हो रही है। तो इस तरीके से में जो भी एविडेंस डालना है आपने उसको ज़रूर 2 से 3 उसमें एक्सप्लेन करना है, सेंटेंसेस में इस तरीके से आपने अपना पूरा पैराग्राफ करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आईसेप जो है उसकी अपने नोट्स भी हैं, कंपल्सरी के भी, ऑप्शन सब्जेक्ट्स के भी। तो आप उन बुक्स, उन रिसोर्सेज को भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको यूज़ कर सकते हैं जब आप वो पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला आपके पास ज़रूर एक की बुक, एक की नोट्स होने चाहिए जिनसे आप बेसिक पढ़ें। उनको सबको पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग आपने वहाँ से डेवलप करनी है और जो आपने अपने आंसर को, एक लिटरेरी आंसर, एक एनालिटिकल आंसर, और एग्जामिनर को ये प्रूफ करना है कि मेरे पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसके लिए आपने अच्छे रिसोर्सेज को, ये अच्छी बुक्स को पढ़ना है, उसके अच्छे फैक्ट एंड फिगर्स कलेक्ट करने हैं, और वो कलेक्ट करने आपने सेपरेट रख लेने हैं, जिनको आपने अपने इश्यूज हैं, कॉजेज, रीजंस, वे फॉरवर्ड, ये तो आपको याद रह जाते हैं। ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको ज़रूर याद रहेंगे। लेकिन जो आपको नहीं याद रहेगा वो कोड्स, वो फिगर्स हैं जो कि आपने अपने जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऐड करनी हो सकती है। बैलेंस्ड पेपर करें, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप हर क्वेश्चन को अराउंड 6 to 7 पेजेस दें। ऐसा नहीं है कि मैंने पहला क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने आउट क्लास किस्म का लंबा कर दिया। नंबर 20 में से मिलने हैं। आखिरी का लिए मैंने 2 सफ़े लिखे, तो एग्जामिनर कभी भी मुझे 14 या 15 नंबर नहीं देगा, वो मुझे इसके लिए मैक्सिमम 5 या 6 नंबर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक बैलेंस पेपर करना है। 35 मिनट्स हो जाए तो आप अपने क्वेश्चन को खुद ही कंक्लूड कीजिए और एंड तक पेपर को कंक्लूड करके आइए, ताकि पैनल को, एग्जामिनर को कहीं से ये ना लगे कि बच्चा जो है उसने हैपहैज़र्डली आपने क्वेश्चन किया, ठीक है। उसके लिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी की भी की बुक्स अवेलेबल हैं। वो की बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, आप उनमें से कोई भी की बुक लेके आ, ठीक है। कोई भी एक अच्छी की बुक लेके, आईसेप्स अगर आप ज्वाइन करें तो आप उनकी की बुक लीजिए और उसको जो उन्होंने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हुई है आप उसको पढ़ें, आपका मैक्सिमम चीज़ें वहीं से कवर हो जाएंगी। जीएसए जो है इस लिहाज से एक इजी पेपर है, क्योंकि जो जनरल साइंस का सारा थियोरेटिकल पोर्शन होता है इसमें कोई इतना करंट अफेयर्स वगैरह, कोई ऐसी फैक्ट एंड फिगर्स का मसला नहीं होता। तो वो आपके, अगर आपने अच्छे तरीके से वो पेपर प्रिपेयर किया हुआ है, वो सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, तो आप क्वेश्चन ईजीली अच्छे अटैम्प्ट कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, अच्छी ग्राफ्स बनाएं। अगर ये जिस तरीके से जनरल साइंस है तो आप अच्छी डायग्राम्स यूज़ करें, और जब आप एबिलिटी का पेपर यूज़ करें तो जो आपको क्वेश्चन आया है, एबिलिटी के क्वेश्चन आया फॉर इंस्टेंस के कोई भी ऐसा क्वेश्चन कि आपको रिलेशन जिसमें असेस करते हैं, कोडिंग डी कोडिंग वाला क्वेश्चन है, तो जब आप उस डी कोडिंग वाले क्वेश्चन को
कोडिंग वाले क्वेश्चन को डी कोड कर रहे हैं ना, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए कि आप डी कोड करते हो सिर्फ आंसर लिखिए। आपने जो प्रॉपर पैट एग्जामिनर को दिखाएं ताकि उसको पता लगे कि बच्चे ने किस तरीके से कौन सी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना आंसर जो है वो डिड्यूस किया है। इस तरीके से आप पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकते हैं उन एबिलिटी के क्वेश्चंस के अंदर। और जो क्वेश्चंस हैं उसके अगर आप सिंपल आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 1 या 2 नंबर देगा। सो दिस इज़ द वे कि आपने अपनी चीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है, डायग्राम्स यूज़ करनी है, आपने टेबल्स यूज़ करने हैं, जब ग्राफ्स यूज़ हो सकते हैं ग्राफ्स करने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए। मैं खुद भी फ्लो चार्ट्स बनाती थी। फ्लो चार्ट्स का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके जेहन में फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन आया, मेरे जेहन में उसके 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैंने वो 10 पॉइंट्स बताने हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 35 मिनट में सब पॉइंट्स बता नहीं पाऊंगी। तो इसका तरीका पता है क्या होता है कि आप लोग जो हैं शुरू में ही वो 10 पॉइंट्स जो हैं वो अपने एक फ्लो चार्ट में बना दीजिए। उसके बाद आप अपना आंसर कीजिए। आपके 6 पॉइंट्स भी हुए, आप अगला नहीं लिख सके, अब 35 मिनट्स होंगे, आप उसको कंक्लूड कीजिए। लेकिन पैनल जो आपका एग्जाम क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है। इस्लामियत का पेपर अमार जी दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों में होता है और आप दोनों में ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इट इज़ बेटर कि आप लोग मैंने सुना है कि मेरा खुद का उर्दू में था, लेकिन बहुत से लोग जो इंग्लिश में रखते हैं, आपके लिए जो कन्वीनियंट है वो रखिए। उर्दू मेरा रखने का मकसद ये था कि मेरे ख्याल में कि आयतें जो हैं उर्दू के अंदर ज़्यादा अच्छी याद रहती हैं, तो आप इसलिए आपको उर्दू में रख के आप अच्छी आयत लिख सकते हैं। इंग्लिश में मेरे ख्याल में आयतों की थोड़ी सी वो हो जाती है गड़बड़, तो मैंने सिर्फ वो आयतें ज़्यादा कोट करने के लिए ही उर्दू में रखा था। हदीसें याद रखने के लिए जो वाक़ये वगैरह कोई होते हैं, कोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है या खुलफाए राशिदीन से, तो अच्छे उसमें वाक़ये कोट हो सकते हैं। ये मेरा पर्पज़ था उर्दू में रखने का। आप लोग इंग्लिश में भी रख सकते हैं, उर्दू में भी रख सकते हैं। और आई हर्ड वे बेस नहीं करता कि इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो वाली लैंग्वेज चूज़ कीजिए। और इसके लिए भी इस्लामियत के लिए है कि आप अराउंड 40 to 50 आयात और कुछ हदीसें सेपरेट करके रख लीजिए, ठीक है। जब वो सेपरेट करके रख लेंगे तो आप उनको अपने पेपर में जाने से पहले पढ़िएगा, ठीक है। इससे आपको इतनी मदद मिलेगी कि आप लोग जो हैं आंसर तो आपको इस्लामियत मेरे ख्याल में हर बच्चे की अच्छी होती है, आपको सबको बेसिक इस्लामियत की अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन उस टाइम के ऊपर आपको अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए वो आयतें चाहिए होंगी। जब वो आयतें उनकी आयतों के नंबर उनकी आपकी सूरत से ली जा रही है लिखेंगे तो इससे अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें भी आप फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए और जो आयतें हैं वो आप कट मार्कर से सेपरेट रखिए, अपने पैराग्राफ के अंदर डाल के मत लिखिए ताकि वो हाईलाइट हो और पैनल को पता लगे, सॉरी एग्जामिनर को पता लगे। ऐसे किस तरीके से लिखते हैं चीज़ को पहले स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, उसकी आउटलाइन मेकिंग करें, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सब करना शुरू कर दें, आपके अच्छे आउटलाइंस बनी, आपके अच्छे आपको उसकी टॉपिक इंटरप्रिटेशन बेहतर हो रही है, आप इंट्रोडक्शन लिख पा रहे हैं, तो आप उसके आगे मज़ीद 2 से 3 पैराग्राफ्स कैसे लिखिए जिसका एंड में कंक्लूजन भी लिखिए। सो इस तरीके से आप मूव ऑन करती जाइए और आप 2500 तक चले जाएँ। जब आप इस सब प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा रिसोर्स पढ़ रहे हों, ठीक है। मैं जो करती थी, मैं पहले टॉपिक पढ़ती थी कि मैं इस टॉपिक पर अटैम्प्ट करने लगी हूँ, उसके बाद जो है उसी टॉपिक के ऊपर अटैम्प्ट करने से पहले मैं अच्छी तरह, ठीक है, उसके बाद जो है रिसर्च करने के बाद मैं उसमें से ही अपने लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल लेती थी, 2-3 कोट्स रख लेती थी और फिर मैं अपना शुरू करती थी ऐसे। तो ये मेरा पैटर्न था और ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी करके अपना ऐसे शुरू कीजिए। और ये सिर्फ आपकी ऐसे में हेल्प आउट नहीं करता, अगर वो जेंडर से रेलिवेंट है तो आपका जेंडर स्टडीज़ में कर रहा है, अगर वो करंट अफेयर्स से रेलिवेंट है तो आपका करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक प्रिपेयर हो रहा है, अगर कोई पाकिस्तान से नेशन है तो आपका पाकिस्तान अफेयर्स प्रिपेयर हो रहा है, इससे सब आपका कोई ना कोई और सब्जेक्ट भी उसके साथ प्रिपेयर हो रहा होता है, ठीक है। लास्टली जो है आई वुड इनवाइट यू ऑल कि आप लोग जो हैं वो आईसेप का जो फ्री सेमिनार 6 जून को कंडक्ट हो रहा है 5:30 PM, आप सब वो अटेंड कीजिए। आप बहुत CSS टॉपर्स जो हैं एक्चुअली वो सेशन लीड कर रहे हैं, दे विल हेल्प यू आउट, दे विल गाइड यू, दे विल टेल यू अबाउट द बेस्ट स्ट्रेटजीज़ और जो ये सब चीज़ें हैं कि किसने क्या किया। देखिए हर एक का एक्सपीरियंस वेरी करता है, इंडिविजुअलिटी मैटर्स अ लॉट। आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अपनी बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज और अपनी फाउंडेशंस को लेकर चलिएगा, उसके ऊपर जो है आप सबसे गाइडेंस लीजिए
और पेपर प्रेजेंटेशन, उसके अलावा आपकी इंग्लिश और आपकी एनालिटिक्स, अच्छी रीडिंग की है कि कितनी रिसोर्स बुक्स पढ़ी, ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपकी सक्सेस को डिफाइन करती हैं। इवन इट डिफाइंस योर बीइंग एलोकेटेड इन सम टॉप ग्रुप और ग्रुप ऑफ योर चॉइस। ठीक है, ग्रुप सब CSS के अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, ये सब के सब 12 के 12 दे ऑल मेक यू CSPs। ठीक है, यही सब की एस्पिरेशन होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि किसी में कोई पर्क्स होते हैं, कोई प्रिविलेजेस होते हैं, किसी में कोई होते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वेरी करते हैं, किसी में ज़्यादा काम होता है, कुछ लोग होते हैं कि उनको ऑफिस जॉब चाहिए होती है तो वो उस किस्म के ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी को ऐसा ग्रुप चाहिए होता है जिसको ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा पावर, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको लगता है कि हम इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो वो उस ग्रुप को ऑप्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल गुड लक कि आप सब लोग लॉन्ग रन आपकी सारी क्वालिफायर बता रहा होता है तो डेफिनेटली वो अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा होता है। आप उस एक्सपीरियंस को ज़रूर अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर इनकलकेट कीजिए। आई विश यू ऑल बेस्ट लक एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड जो मेंटर्स हैं वो आपको वही आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। I'm calling, maybe I'm selfish. Out